Hello, good evening, everyone. Once again, I welcome all of you in today's session of daily news analysis. Okay, today is 17th of November. Okay, so I have again brought all the news which is important for you people in the Hindu newspaper today. Okay, I couldn't find different news in Indian Express, so all the news I am taking today is from the Hindu. Whenever there is an important topic in Indian Express, I will also take that consequently. Okay, today's class will be important for 2-3 reasons. One reason is that whatever I have taught earlier, like in day before yesterday, I have talked about Digital Personal Data Protection Bill. Okay, so today there is also an analysis on that. So what I want to say is that other day you got some knowledge. Today you will add to that knowledge. So you will compile this topic separately. Get the point? This is how you add up your knowledge by newspaper analysis. One tip for newspaper analysis today is that whenever you have already read a topic and you have made short notes of that topic, you please add the upcoming daily news. Whenever something comes in news related to that topic, add it to the existing topic which you have written in your notes. In that way, you will get a great compilation of news articles daily, and every day you will have huge chunk of knowledge in one topic. So at the end of the day, all you need is 250 words knowledge about everything which is going around you in current affairs. I hope you got this point. Okay, so now I will be starting. Today I have selected again 7 articles. Okay, one is deletion of workers from the MG Narega scheme. Okay, deletion of MG Narega scheme, or MG instead of A, it is also S. Okay, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Okay, so why the deletion is taking place? What is the concern? What are the issues? And should it happen or not? That will be one part which I will discuss. Okay, second thing I will be talking about in the editorial, there is information about the Digital Data Protection Bill. Means something which has been done. It is too little and it is too late. This is the title of the editorial, and it talks about digital personal data protection. Okay, I will be taking this also, and after that I will be taking another editorial which talks about yesterday I talked about world global TB report. It talks about the TB position of TB status of our country. Okay, and it has also highlighted some concerns, TB status, and some strategies what needs to be done. Okay, then another editorial, very important, it is related to air quality in Delhi, an environment related issue, air pollution, and what can be done to deal with the air quality in Delhi. So this is also one article, and it is written by a wonderful person, Shashi Tharoor. I hope you all know his name. Okay, so he says that Delhi's air quality is a very big problem. Okay, air pollution in Delhi is a very big problem. Okay, how we can address this problem? These are the issues which have been highlighted in the editorial by Shashi Tharoor. Okay, moreover, there is some discussion about the prevention of children from sexual offenses, POCSO Act of 2012. Okay, is it gender friendly? Is it gender neutral? Does it prevent the children of only female gender or male gender also? So it is all what is discussed in today's newspaper. आज के न्यूज़पेपर में पॉक्सो के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है. ठीक है, ये भी एडिटोरियल में से ही है. ठीक है, देन एक्सप्लेन्ड पेज पे द हिंदू का भी एक एक्सप्लेनर पेज आता है, उस पे अगेन वहां पे एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स क्या है, व्हाट आर द डीपी रूल्स एंड हाउ डू दे इम्प्लीमेंट, विच पार्ट कम्स इनटू फोर्स एंड विच पार्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड लेटर. कौन सा पार्ट आज इंप्लीमेंट होगा, कौन सा पार्ट कब इंप्लीमेंट होगा, सारी चीजें इसमें जो है वो डिस्कस की गई है, और वंडरफुल आर्टिकल है ये. आज के इस आर्टिकल के बाद मुझे नहीं लगता आपको डिजिटल पर्सनल डेटा के ऊपर कोई भी आर्टिकल पढ़ने की फिर जरूरत पड़ेगी. सो टेक्निकली मैंने आपको दिखा दिया कि कम से कम 2 दिन लगे हमें एक टॉपिक के ऊपर
पूरा नॉलेज गेन करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि नॉलेज फ्रेगमेंटेड वे में आता है, ठीक है। ओके, सो और उसके बाद छठा आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन मेडिसिन के बारे में। ओके, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, ओके, और प्रिसीजन मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है प्रिसीजन मेडिसिन, और प्रिसीजन मेडिसिन में इंडिया का क्या स्टेटस है, और प्रिसीजन मेडिसिन में इस वक्त हमारे पास क्या स्कोप है, कौन सी कंपनीज वर्क कर रही है, क्या चैलेंजेस है हमारे पास प्रिसीजन मेडिसिन में, और क्या वे आउट है। ओके, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं प्रिसीजन मेडिसिन के बाद, मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के न्यूज़पेपर में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ऊपर जस्टिस गवाई के कुछ कमेंट्स आए हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच आर्टिकल बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आर्टिकल। इट इज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें पॉलिटी है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें जनरल सोशल इश्यूज है, और इसमें ये भी एक सोशल इशू है, हेल्थ इशू है, और इसमें एनवायरनमेंट है। तो आज के न्यूज़पेपर में काफी सारी चीजें जो है आपके लिए प्रेजेंट हैं। सो आप थोड़ा सा मुझे बहुत गौर से सुनेंगे। हालांकि मुझे नई बातें जो है आज के डेट में वो सिर्फ कुछ आर्टिकल्स में बतानी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एमजी नरेगा एक्ट। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और स्कीम। ओके, आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2005। ओके, व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? इट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये इसका मेन पर्पस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों के पास अगर काम नहीं है, उन लोगों के पास जिनके पास काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, वी विल प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आई से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पे वो कोई ना कोई चीज क्रिएट करेंगे। गेनफुल मींस उसका कोई यूज भी होगा बाद में, जैसे एक पक्का पाथ बना दिया, ठीक है, या प्रोटेक्शन वॉल लगा दिया किसी जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अभी इस वक्त अभी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, EKYC, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टम नॉर्म्स, EKYC नॉर्म्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी वर्कर है उसको अपना अटेंडेंस मार्क करना है अपने वर्क पोजीशन पे जाके। हो क्या रहा था एक्चुअली, नरेगा में पीपल वर टेकिंग 100 डेज पेमेंट, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था, बिना काम किए काम 10 दिन किया और 100 दिन का पेमेंट ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से वर्कर जो है वो एग्जैक्टली बायोमेट्रिकली अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करते थे, उसमें अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ, इस समय गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कर दिया, ABPS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, आधार एनेबल्ड, जब तक ना आप वर्क साइट पे जाएंगे, अपना मार्क आधार से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करेंगे बायोमेट्रिकली कि आप वहां गए, आपने काम किया, तब तक आपका पेमेंट नहीं होगा। गेट द पॉइंट। ओके, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, बहुत सारे लोगों का आधार मिसमैच है, बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। इस वजह से पाया गया था देयर वर सो मेनी फ्रॉडुलेंट जॉब कार्ड होल्डर्स। जॉब कार्ड होल्डर कौन होता है, वन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट जॉब अंडर नरेगा, उसके पास एक डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड जॉब कार्ड, ठीक है। तो फेक जॉब कार्ड होल्डर्स बहुत सारे थे। तो ये इस फेक जॉब कार्ड होल्डर्स को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस EKYC। फेक जॉब कार्ड होल्डर्स को हमने क्या करना है, हटाना है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या करना है, मिसयूज ऑफ द नरेगा फंड्स एंड स्कीम, मिसयूज ऑफ MG नरेगा फंड्स। गेट द पॉइंट। ये सारी चीजें हमको जो प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू एंश्योर EKYC। अब EKYC करते करते हमें इतना ज्यादा पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटाइटल्ड नहीं है बेनिफिट्स के लिए और बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे 10 अक्टूबर 2025 से लेके 14 नवंबर 2025 तक वो लोग जो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाए बायोमेट्रिकली, उनका क्या हो गया, डिलीशन। तो टू योर अटर सरप्राइज मैं आपको बताऊं कितने लोग डिलीट हो गए नरेगा के स्कीम से। अराउंड 25 लाख पीपल वर डिलीटेड। हाउ मच? अराउंड 25 लाख पीपल वर डिलीटेड। 27 लाख वर्कर्स वर डिलीटेड। डिलीशन ऑफ 27 लाख वर्कर्स। ओके, हालांकि एडिशन भी हुआ, काफी सारे नए वर्कर्स भी ऐड हुए, और तो टोटल जो 10.5 लाख ऐड भी हुए, 10.5 लाख ऐड हुए, और इतने
माइनस हुए। तो नेट जो है नरेगा में ऐसा, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिसेंटली जो नरेगा स्कीम है उसमें जो है बेनिफिशियरीज को कम किया जा रहा है। नहीं, बेनिफिशियरीज को प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। इसके बाद भी, डिलीशन के बाद भी, ये एडिशन होने के बाद ये एडिशन भी हुआ। तो अगर आप नेट देखेंगे, डिलीशन 27 लाख का नहीं, अराउंड 16 लाख के आसपास रह गया। ठीक है, 15.5, 15.5 लाख नेट एडिशन। लेकिन ये पिछले एक मंथ में पेस ज्यादा बढ़ा। ठीक है, अगर आप देखोगे ओवरऑल 15.2 लाख का रिमूवल हुआ था, 15.2 लाख का रिमूवल हुआ इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025-26। फर्स्ट हाफ मींस फ्रॉम मार्च 2024, सॉरी, फ्रॉम मार्च 2025 टू सितंबर तक, अगस्त तक, सॉरी, अगस्त तक। पहले 6 महीने में इतना डिलीशन हुआ, लेकिन पिछले एक महीने में अकेले में 15.5 डिलीशन हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्सटेंसिव डिलीशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब है वेरिफिकेशन जो है वो पेस पकड़ गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर देखेंगे वेरिफिकेशन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये साउथ इंडियन स्टेट्स मेजरली जहां पे डिजिटल लिटरेसी अच्छी है, और सेंट्रल इंडियन की भी एक स्टेट है छत्तीसगढ़। इन स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिलीशन पाया गया। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या नोटिस करना है? नोटिस ये करना है कि इस वक्त डिजिटल जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा जो इस वक्त डिजिटल सेटअप है कंट्री का, ई गवर्नेंस का जो हमारा सेटअप है, उसकी वजह से वी आर ट्राइंग टू मेक ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम्स। तो आपके गवर्नेंस के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके का, तो ये वाली केस स्टडी जो है आप उसमें डाल सकते हो। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ नरेगा के स्कीम में, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। सो दिस इज वन टॉपिक। अब मैं 2 टॉपिक्स को क्लब करके पढ़ाऊंगा यहां पे। एक जो मैंने आपको कहा एडिटोरियल है, एक टू लिटिल कि बहुत कम हुआ किस फील्ड में, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन में, और टू लेट और काफी लेट हो रहा है ये। एक तो ये, दूसरा मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं क्या। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं क्या, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन पेज पे आर्टिकल है। ठीक है, पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसको टू लिटिल क्यों बोल सकते हैं और टू लेट क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रूल्स हैं क्या। ठीक है, इन रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ग्लोबल एग्जांपल्स भी आपको इसमें साइट करनी पड़ेगी। यू नीड टू साइट ग्लोबल एग्जांपल्स आल्सो। सो इंडिया में इनको क्या कहते हैं? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, जो कि नोटिफाई हुए कब? 14 नवंबर 2025। अब देखो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, एक्ट इज बेसिकली विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हैज गिवन अ सिग्नेचर ऑन इट। एसेंट दिया प्रेसिडेंट ने, इसलिए इसको एक्ट कहते हैं। ये एक्ट पास हुआ 2023 में। अब 2 साल हो गए और अभी तक स्पेसिफिक गाइडलाइंस और स्पेसिफिक रूल्स इसके ऊपर नहीं बने, इसलिए इट इज टू लेट। यस, इट इज टू लेट 100%। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक लीगल फ्रेमवर्क है। ये दोनों चीजें क्या एस्टेब्लिश करेंगे हमारी कंट्री में? एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन। यू गॉट इट? अब ये लीगल फ्रेमवर्क जो है हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एस्टेब्लिश करेंगे। क्यों जरूरी है ये लीगल फ्रेमवर्क? इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हर एक चीज के लिए हमको पर्सनल डेटा शेयर करना पड़ता है। अपना ईमेल, अपना मोबाइल फोन, पर्सनल डेटा शेयरिंग। आज की डेट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं मेंस के लिए कि पर्सनल डेटा शेयरिंग आज की डेट में हैज बिकम अ नेसेसरी इविल। लिखो इस क्वेश्चन को।
नेसेसरी इविल हो चुका है। क्यों? अगर आप डेटा नहीं देंगे, आप स्कीम्स में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, यू कैन नॉट बी बेनिफिशियरीज ऑफ एनीथिंग इन द सिस्टम। गेट द पॉइंट? लेकिन उस डेटा का प्रोटेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो इसलिए ये रूल्स बनाए गए, जिससे एक लीगल फ्रेमवर्क बनेगा। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप बात करें या डेवलप्ड कंट्रीज में आप बात करें, तो यूरोप में क्या है? जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इट इज इन लाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ग्लोबल प्रैक्टिसेस में हम बात करते हैं पहले यूरोप की। यूरोप में क्या है? जीडीपीआर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपके पास पीडीएफ आ जाती होगी और उसमें मैंने डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। ओके, ये कहां के हैं? यूरोप के हैं। ठीक है, पीडीपीए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये कहां का है? सिंगापुर का। तो ग्लोबल केसेस में, केस स्टडीज में आपको बता रहा हूं, सिंगापुर में क्या है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, पीडीपीए। ठीक है, अच्छा हमारा कब आ रहा है? 2025 में। अगर आप सिंगापुर का देखोगे तो 2012 में। तो isn't it too late? UPSC में ask you a opinion based question that this is a right step but it is a much delayed step. It was long overdue. उस केस में आपको ये एग्जांपल्स देनी पड़ेगी कि ग्लोबल लेवल पे कितना पहले ये काम हो रहा है। ठीक है, कितना पहले ये काम हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे दो टर्म्स हमारे जो ग्लोबल डेटा, जो हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, इनमें दो टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, एक डेटा फ्यूडिशरीज। कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो ये क्या है, व्हाट आर डेटा फ्यूडिशरीज, क्योंकि ये मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास में बताया है। और आज मैं आपको नई टर्म जो सिखाऊंगा दैट इज डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल्स, ये आज की टर्म है। तो आज की टर्म आप बता दो, पुरानी टर्म आप बता दो, आज की टर्म मैं बता दूंगा। डेटा प्रिंसिपल्स को किसको कहते हैं? जो भी डेटा के यूजर्स हैं, ठीक है, जो यूजर इंफॉर्मेशन है, जिस इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ डेटा फिड्यूशियरी कौन है? हर वो कंपनी या हर वो एंटिटी जो डेटा कलेक्ट करती है, कलेक्टिंग द डेटा, जैसे गूगल हो गया या अमेजॉन हो गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना। ठीक है, सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये रखना है कि जो भी डेटा फ्यूडिशरी है उसको क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, डेटा फ्यूडिशरी मस्ट पोजेस क्या? इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स और एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कि कौन कौन उस डेटा को एक्सेस करे, ये कंट्रोल डेटा फ्यूडिशरी के पास ही होना चाहिए। और वो डेटा जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, कोडेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें किसके पास होना चाहिए? डेटा फ्यूडिशरी के पास। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है रूल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपको कंसेंट लेना है जिसका भी डेटा आप यूज कर रहे हो। इसलिए गूगल हमेशा पॉपअप करता है एलो टू एक्सेस योर माइक, एलो टू एक्सेस योर कैमरा, वो कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रूल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, और अगर आप माइनर हैं तो आपके केस में कौन देगा? पेरेंटल कंसेंट। आपके केस में पेरेंट जो है वो क्या देगा? कंसेंट देगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट क्या है? यूजर के पास वो राइट होना चाहिए कि वो कभी भी अपना डेटा वहां से रिमूव कर सके, अपना डेटा वहां से क्या कर सके? मॉडिफाई कर सके, डिलीट कर सके। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा, यूजर राइट, यूजर राइट्स टू रिमूव द डेटा, टू मॉडिफाई द डेटा और डिलीट द डेटा, डिलीट द डेटा। ये किसके पास होने चाहिए राइट्स? ये राइट यूजर के पास होना चाहिए। ये राइट किसके पास होना चाहिए? ये यूजर के पास होना चाहिए। समझ गए आप? ठीक है, इसके अलावा हमारा इस इंपॉर्टेंट एक और अथॉरिटी कहा गया कि बड़ी कंपनीज जो हैं उनके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको कहेंगे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, DPO, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर इन मेजर डेटा फ्यूडिशरीज। मेजर डेटा फ्यूडिशरीज जो हैं, जो डेटा होल्डर्स है, उनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव
दिस डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अब डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम होगा, वो इंश्योर करेगा कि हर कंपनी ये रूल्स फॉलो कर रही है, टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस, टू इंश्योर रेगुलेटरी compliance. Is that clear? To ensure regulatory compliance. I hope it is clear to all of you. इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि there must be consent manager. There must be consent manager service which must be auto enabled, and all platforms shall take consent from the data principles. Okay, consent manager service, management of consent should be taken from all. So consent manager service must be there with all the data fiduciaries, ठीक. And then compulsory reporting of data breach, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि कंपल्सरी आपको बताना है अगर कहीं डेटा ब्रीच है, कंपल्सरी रिपोर्टिंग ऑफ डेटा ब्रीच, कंपल्सरी रिपोर्टिंग ऑफ डेटा ब्रीच, ठीक है. एंड फाइनली मैंने आपको बताया इसमें 7वां प्रोविजन क्या है, पेनल्टी प्रोविजन है. किसके लिए पेनल्टी प्रोविजन है, किसके लिए, जो डेटा को ब्रीच करेगा और बाद में इन्फॉर्म नहीं करेगा. वो कहां से शुरू है, इट इज फ्रॉम 10,000 अप टू 250 करोड़. प्रोविजंस हो गए सीधा. अब ये वाले प्रोविजन जो है आपको ओपन फॉर कंसेंट है, ठीक है. अब इसके अलावा इस ये जो एक्ट है डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट ने आरटीआई एक्ट की एक सेक्शन अमेंडमेंट की थी, ठीक है. इट अमेंडेड आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. आरटीआई एक्ट क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये कहता है कि वॉलंटरीली गवर्नमेंट एजेंसीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, और अगर वॉलंटरीली नहीं प्रोवाइड कर पाए तो जब लोग अप्लाई करें आपके पास, आपको विद इन 30 डेज आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है. लेकिन इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देने भी पहले कंपलसरी थी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी होता. अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो आपको वो देनी थी अर्लियर. दैट वाज सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे. सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, प्लीज रिमेंबर दिस. इसके अंडर में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है. किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. और इंफॉर्मेशन देने वाले ऑफिसर को क्या कहते हैं, पर्सनल पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, लेकिन इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने ये वाले क्लॉज को खत्म किया कि अब ये जरूरी नहीं है, इवन इफ इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे आरटीआई एक्ट जो है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया. अब मैं क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट पे आ गया हूं, ठीक है. तीसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अब लास्ट पॉइंट है इसका, कि आपके पास एक बनेगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ओके, डीपीडीबी. अब ये बोर्ड जो है किसके अंडर रहेगा, ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़े बड़े जाइंट से क्या करती है, इन्वेस्ट कराने के लिए उनको प्रपोजल्स भेजती है. जब बड़े जाइंट्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेजॉन जैसे जाइंट्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी अगर इनसे ब्रीच भी हो जाए, मान लीजिए अमेजॉन से एक ब्रीच हो गया, किसी का डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है, तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, ये अमेजॉन को कैसे पनिश करेगा. अमेजॉन तो मिनिस्ट्री के क्लोज नेक्सस में है, कि मिनिस्ट्री जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इनको कंपनीज को ला रही है, ठीक है. तो मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये बोर्ड है. तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. यहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब इस एक्ट के कौन कौन से पार्ट अभी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का डाइल्यूशन है वो वाला पार्ट इंप्लीमेंट हो चुका है. बाकी पार्ट्स के लिए 12 से 18 महीने का टाइम दिया गया है कंपनीज को इंप्लीमेंट करने के लिए. तो इट इज अ लॉन्ग डिले.
ऑलरेडी हम इतना लेट चल रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन में, और आपने 12 से 18 मंथ दे दिए कंपनीज को कंप्लायंस के लिए, तो इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग डिले, इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग डिले। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया आपको? सो मैंने 2 आर्टिकल्स आपको एक साथ पढ़ा दिए, तो इसलिए मैंने बताया टू लिटिल का मतलब ये बिल्कुल कम है अभी, कि आप पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो किस हद तक, कि कंपनीज उसको ले सकती हैं हमसे, लेकिन एनक्रिप्शन करना है और एनक्रिप्ट करके उसको क्या करना है, राइट देना है यूजर को, ठीक है। अगर वो डेटा ब्रीच हुआ उसके लिए सिर्फ पेनल्टी है, लेकिन रिकवरी के लिए क्या मैकेनिज्म है, डेटा कैसे रिकवर करना है, ठीक है, और कितना डेटा देना मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपसे कोई भी पर्सनल डेटा आपसे कभी भी मांग सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर क्यों रेगुलेशन नहीं है इसमें? सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट टू लिटिल। और टू लेट मैंने आपको बता दिया ग्लोबल एग्जांपल से, कि जब वर्ल्ड इतना आगे चल रहा है तो हम इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। I hope it is clear. So 2 articles I clubbed and gave you a detail. अब आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये मैं ऑलरेडी जानता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लीज मूव अहेड। अब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। ये एक्ट बनाया गया है कि चिल्ड्रन जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन आर डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, ये क्यों आज न्यूज में है? क्योंकि वुमेन हैज कमिटेड अ सेक्सुअल ऑफेंस, एलिजिडली मींस उस पर इल्जाम है, एलिजिडली committed a sexual offense against male child के अगेंस्ट एक वुमेन ने सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस दे दिया, ठीक है। अब इसमें कई सारे एक्टिविस्ट, स्पेशली जो एडवोकेट है उनका, वुमेन का, वो ये कहता है कि वुमेन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है सिर्फ फीमेल चाइल्ड को, और यहां पे मेल चाइल्ड के लिए उसके ऊपर इल्जाम है, ठीक है। लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है इट इज कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल। क्या है? कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल। अच्छा, इसमें ऑफेंसेस भी डिफाइंड है, किस तरीके का ऑफेंस। तो जो ऑफेंस अभी हुआ है उसको कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी मैंने आपको यह बता दिया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो, इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि होता क्या है, व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सो आई विल लेट यू नो व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 3 कहती है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस or penetration of any object or penetration of anything, any unwanted thing unnaturally into the vagina, anus or any other thing or any body organ of a child. Now the child is defined above the age of 18 years, sorry, below the age of 18 years. 18 साल से छोटा जो है उसमें उसको चाइल्ड डिक्लेयर किया गया। अब वुमेन ने क्या किया, अब ये तो हो गया वुमेन के लिए कि अगर कोई भी फोर्सफुली चीज जो है वो पेनिट्रेट किया जाए, ठीक है। मेल के लिए फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, कि मेल चाइल्ड को अगर फोर्स किया जाए कि आप पेनिट्रेट करो किसी वुमेन या मैन के अंदर, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स और पेनिस और एनीथिंग, ठीक है। तो मेल चाइल्ड के लिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन क्या दिया गया है सेक्शन 3 में, कि इफ अ मेल इज मेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट any of the acts like penetration of penis into vagina, mouth, urethra, anus or anything, okay, or insertion of any object into the body or applying anything which is unwanted to the body. मेल चाइल्ड को अगर फोर्स किया जाए कि आप ये करो किसी और के अगेंस्ट, ठीक है, इन दिस केस इट इज एलिजेड, ये इल्जाम है कि वुमेन हैज फोर्स्ड a child below the age of 18 to do penetrative sexual assault. गेट द पॉइंट, समझ में आ गया आपको? नाउ क्या ये जेंडर न्यूट्रल है? सेक्शन 3 लेकिन हमेशा ही जब डिफाइन कर रहा है सेक्शन 3, ये हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हमको जब भी बोलना होता है हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, ही,
ओके, तो एडवोकेट कह रहा है कि ही यूज हुआ है, ही मीन्स ओनली मेल, लेकिन हमारे पास एक और एक्ट है, उस एक्ट का नाम है जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1987। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको वैसे भी लाइफ में काम आएगी। हाँ, जनरल क्लॉज एक्ट 1987, ये कुछ वर्ड्स का यूज डिफाइन करता है, कुछ क्लॉजेस का यूज डिफाइन करता है। और ये एक्ट क्या सेक्शन 13 कहता है, इस एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि ही डज नॉट ऑलवेज मीन्स मेल अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। अगर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है तो आप ही को मेल मान लो, अदरवाइज ही टर्म जो है उसको आप जेंडर न्यूट्रल मान लो। ये कौन कहता है? सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1987। तो इससे भी पता चलता है कि सेक्शन 3 में जो टर्म ही यूज किया है, इट इज बेसिकली जेंडर न्यूट्रल, इट इज जेंडर न्यूट्रल। ओवरऑल, आई एज एन civil services aspirant trainer, as a student and as a civil servant myself, I am satisfied that this act is doing well in the country to prevent children from sexual abuse. Get the point? Even law, even Lok Sabha, even Rajya Sabha in various replies has said already that it is equally applicable to male and female children. Definition of children, 18 years. You remember this also. Okay, now one important part which you must remember, that is a Supreme Court judgment, that is Sakshi versus Union of India 2004. In the Sakshi versus Union of India case of 2004, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि सेक्सुअल अब्यूज जो है, इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस आते हैं और वो मेल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं और फीमेल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। इट इज नॉट ओनली वेजाइनल पेनिट्रेशन, इट कैन बी वाइड रेंज अदर देन वेजाइनल पेनिट्रेशन। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो वुमेन भी कभी कभी चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्या कर सकती हैं? सेक्सुअल असॉल्ट कर सकती हैं। दिस इज अबाउट डिजिटल न्यूट्रलिटी ऑफ, दिस इज अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। समझ में आ गया? मेरा स्पीड प्रॉब्लम नहीं, आई होप। ठीक है, चलो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट नाउ, yesterday I have talked about tuberculosis status in India. टीबी स्टेटस के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। फास्टेस्ट डिक्लाइन इंडिया का 21% रेट से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टिल 25% वर्ल्ड के टीबी केसेस इंडिया में, आपको वर्ल्ड टीबी केसेस ऑफ वर्ल्ड टीबी केसेस इन इंडिया। अच्छा, इसमें भी हमारे जो हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस ज्यादा हैं, 35% ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस इन इंडिया। अच्छा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फिर उनके लिए हम यूज करते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यूज करते हैं उनके लिए जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कौन सा हो गया? ट्यूबरक्लोसिस विच हैज started resisting the medicine, mainly isoniazid, rifampicin. Get the point? Okay. अब ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट थोड़ा कम है, 70% सक्सेस रेट, ठीक है, 70% सक्सेस रेट है, ठीक है। और नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस में सक्सेस रेट कितना है? 90% सक्सेस रेट है। अब मैं ये सारी बातें इतने कंफर्टेबली आपको कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि ये सारी आपके न्यूज़पेपर में दी गई हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे 77% है, ये सक्सेस रेट इज 77%। हाउ मच? सक्सेस रेट इज 77%। आज के आर्टिकल में मुझे जो एक्स्ट्रा 2 चीजें मिली हैं वो ये मिली है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही है पर एनम। पहले हो रही थी 2015 में 28 डेथ्स पर ईयर, 28 डेथ्स पर ईयर, ये 2015 का डेटा है। 2024 में हो रही है 21 डेथ्स पर ईयर, 21 डेथ्स पर ईयर। अगर हमको 2025 तक एलिमिनेट करना था ट्यूबरक्लोसिस को, तो यहां पे 21 की जगह होना चाहिए था 7 डेथ्स पर ईयर,
तब हम पॉसिबल था कि हम इसको एलिमिनेट कर पाते बाय 2025, लेकिन अब हम वो टारगेट मिस कर चुके हैं, इसलिए हमको 2030 तक ये टारगेट अचीव करना होगा। हालांकि ग्लोबली जो डेडलाइन है वो 2030 की ही है। वो क्या है? 2030 की ही है। ठीक है। अच्छा, हमारी कंट्री में एक नई, नॉट हमारी कंट्री में, अक्रॉस द ग्लोब एक नई थेरेपी ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। Apart from yesterday I told you a lot of AI driven technologies we have started, and then we have started, special intensive monitoring, special intensive sampling, special intensive diagnosis। ठीक है, उसके लिए machines जो भी हैं, but you have to remember this BPALM technique, BPALM technique, BPALM टेक्निक क्या है? BPALM टेक्निक और BPALM रेजिमेन। रेजिमेन क्या होता है? एक मेडिसिन का कोर्स, एक कोर्स को कहते हैं एक रेजिमेन। किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और या नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर जब आपको 4-5 दिन के लिए एजिथ्रोमाइसिन या कोई एंटीबायोटिक देता है, वो एक रेजिमेन होता है, वो एक मेडिकल का कोर्स होता है। ठीक है, तो एक रेजिमेन जो है इसको कहते हैं BPALM रेजिमेन। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। व्हाट इज BPALM रेजिमेन? इसका मतलब क्या है? ये 6 मंथ्स का, इट इज अ 6 मंथ्स कोर्स, इट इज अ 6 मंथ्स रेजिमेन, एंड इट इज ऑल ओरल। ऑल ओरल मीन्स इसमें कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। यू हैव टू कंज्यूम द मेडिसिन। इट इज ऑल ओरल रेजिमेन, एंड इट इज बेसिकली टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट TB। प्लीज रिमेंबर, इट इज टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट TB। समझ रहे हैं बात को? तो ऑलरेडी TB के बारे में मैं कल आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, देखो आज के न्यूज़पेपर में मुझे कैसे 2-3 चीजें एडिशनल मिल गई। अब क्या करूंगा? सिंपल, कल वाला आर्टिकल है मेरे पास, उसी में ये चीजें ऐड कर दूंगा, नॉलेज बेस बढ़ता चला जाएगा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान लगेगा और इंटरेस्ट बनता चला जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, इसको ये BPALM, ये A, दिस स्टैंड्स फॉर एंड, और BPLM स्टैंड्स फॉर 4 ड्रग्स। इसमें मेनली कौन कौन से हैं? देयर आर 4 ड्रग्स इन दिस रेजिमेन, देयर आर 4 ड्रग्स इन दिस रेजिमेन। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक है बेडाकुलिन, please pardon me for pronunciation since I am not from a medicine background, huh? It is bedaquiline. Then there is pretomanid, bedaquiline, pretomanid, okay। उसके बाद है linezolid and maxifloxacin, okay। linezolid and maxifloxacin, ये 4 टैबलेट्स हैं, ये 4 मेडिसिन हैं, इसीलिए इसको कहते हैं BPLM। ओके, B फॉर बेडाक्विलिन, एंड P फॉर प्रेटोमोनिड, एंड L फॉर लेंजोलिड, एंड M फॉर मैक्सीफ्लॉक्सिन। ओके, दिस इज द रेजिमेन विच इज यूज्ड टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट TB इन इंडिया। ठीक है, तो दिस हैज बीन, वी हैव ऑल्सो ब्रॉट दीज न्यू थेरेपीज टू आवर कंट्री। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? Sustained and focused approach is required if we have to achieve the multi-drug resistant TB elimination. Sustained and focused approach. ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर आंसर के सोल्यूशन में यूज हो जाए। मेंस के हर क्वेश्चन के आंसर में सोल्यूशन जहां देना हो, वहां पे सस्टेन्ड एंड फोकस्ड अप्रोच का ये टर्म जो है वो आप इजीली यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? ओके, नाउ वन मोर आर्टिकल विच आई हैव टू डिस्कस इज हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ दिल्ली एयर पोल्यूशन। ये आर्टिकल बड़ा सिंपल है, लेकिन शशि थरूर का आर्टिकुलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली एयर पोल्यूशन, ऑलमोस्ट ये अब एक क्राइसिस है। हर दिन सुबह जब दिल्ली में लोग उठते हैं, दे वेक अप टू हेजी स्काई, दे वेक अप टू वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है छोटे 2.5 नैनोमीटर के रेडियस के जो मटेरियल्स है, दैट इज कॉल्ड एज PM 2.5।
PM 2.5 stands for particulate matter 2.5. इसका continuous consumption जो हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, it reduces life expectancy. It reduces life expectancy by 10 years. 10 years. Moreover, not only it harms the lungs, it enters the bloodstream also. It has the capability, minute particles हैं, it enters bloodstream. It enters bloodstream and that leads to heart attack, cardiac arrests, heart attacks, cardiac arrest, stroke, etc. ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर PM 2.5 एंटर हुआ, ठीक है। इसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, okay. What does the COPD stands for? It is chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease, hampering the whole, this respiratory system, okay. Then also lung infection. So many problems are there, okay. Now, National Air Quality Standards, इसके हिसाब से एयर क्वालिटी को रेंज किया जाता है, ठीक है। और जो एयर क्वालिटी का लेवल है, अगर इट इज 400 और अबव, इट इज कॉल्ड एज सीवियर एयर क्वालिटी। और अगर आप दिल्ली की ऑब्जर्व करेंगे कंटिन्यूअसली, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंटली सीवियर रेंज में आ रही है। क्या आ रही है? सीवियर रेंज में आ रही है, ठीक है। और इससे हमें लॉस कितना हो जाता है एनुअली? $36.8 बिलियन, 36.8 billion, which is around 1.36% of our GDP. 1.36% of our GDP is lost to pollution mitigation of GDP. आप समझो ये सारे फिगर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, ठीक है। लॉस्ट टू एयर पोल्यूशन, 1.36% of our GDP is lost to air pollution. Get the point? Recently, we have done cloud seeding in Delhi. 3 attempts, more than 2 crore rupees spent, but it did not yield any result. Get the point? So, what is cloud seeding? Artificially, we put chemicals in the upper atmosphere so that the water vapors could coagulate around them and form clouds, and then that comes as rainfall. But it didn't happen. Okay. Now, why Delhi has this big problem? UPSC in 2016 also has asked this question, that why not Bengaluru, why not Mumbai, why not other areas? So Delhi has one big disadvantage, that is locational disadvantage. Delhi is surrounded by Aravalli Hills on one side. It lies in the basin. Okay, Delhi lies in the basin. It has a basin type of location. Okay, it is surrounded by various hills, like one Aravalli hill ranges. It surrounds Delhi. Okay, and then they restrict the flow of air properly to Delhi, and they keep pollutants trapped in Delhi's atmosphere. So due to this locational disadvantage, trapping of pollutants takes place. Okay, then also trapping of pollutants, then restricted airflow. Okay, then less vegetation as compared to Delhi, Bengaluru, etc. Okay, then there is less water bodies around Delhi. There are very less water bodies. Major water body around Delhi, Yamuna River, so polluted that people, someone may die of the smell when going around the Yamuna banks. Get the point? Is that clear? Now, moreover, so much of vehicles in Delhi, approximately over 3.3 crore vehicles ply. More than 3.3 crore vehicles ply in Delhi.
ठीक है. So vehicular emission, one more problem. Adjoining areas also notorious. Which adjoining areas? Punjab and Haryana. Stubble burning. Burning of the remaining fodder of the crops. Stubble burning from Punjab and Haryana. These are the causes of Delhi's air pollution. These are the causes of Delhi's air pollution. Now we must learn from the world. How can we learn from the world? I'll give you some examples from global level. Okay, in global examples, I may take the example of London. London has set up areas which are called as ultra low emission zones. Ultra low emission zones, ULEZ. Here, you are not allowed to take the traditional conventional vehicles which are based on fossil fuels, petrol, diesel, etc. Only electric vehicle mobility is allowed. So same things can be implemented in few areas of Delhi. Okay, electric vehicle mobility is allowed in Delhi. Okay, moreover, incentives are provided to common people for shifting to electric vehicles. Okay, then there are buildings on which you don't use, you have energy efficient buildings which do not use fossil fuel based energy. Okay, most of the energy they even use for cooking is solar based energy. Okay, energy efficient buildings. This is again the example from London. Okay, this is an example from London. Okay, Los Angeles has given strict vehicle emission standards. Okay, and clean fuel technology. Okay, in another example from Los Angeles is clean fuel technology. Clean fuel technology, strict vehicle emission standards, strict vehicle emission standards. Although we also have vehicle emission standards in India in the name of Bharat Stage Norms. Bharat Stage Norms, BS norms. Okay, we also have in India, and currently we are in the Bharat Stage 6 norms. But then again in BS 6, still petrol diesel is allowed. Only we have added some urea for filtration of the diesel emissions, etc., etc. Okay, but still we don't have much steps taken for Delhi. Okay, now what do we need? First of all, we need real-time monitoring. We have to monitor remedial measures. We need very important monitoring. कहां से सबसे ज्यादा एमिशन हो रहा है? ठीक है, मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, एक पब्लिक डैशबोर्ड हो जहां से पता चले कि कौन सी सबसे ज्यादा एमिशंस कर रही है. हाउस होल्ड एमिशंस ज्यादा हैं या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा है. ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास एक डैशबोर्ड रहे और उस डैशबोर्ड में पता चले परफॉर्मेंस किस एरिया से सबसे ज्यादा हमारे पास एमिशंस आ रही है, उससे मॉनिटरिंग इफेक्टिव हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज करना है. इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, incentivizing electric vehicles and energy efficient buildings. एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए हमने अभी एक स्कीम लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना. Solar plants are being fixed on the rooftops. They harness the energy and then that is to be used for domestic, but it lacks implementation. People are still not willing. Okay, so a lot of awareness campaigns across the country are being done. Okay, so we have taken some steps also. Okay, then we should expand the energy efficient network like metro networks. Expanding metro network so that major people travel by metro and stop using the personal vehicles. Okay, then also we should also have some alternatives for waste management. Strict waste management norms, waste disposal, waste management norms shall be improved. In some day in current affairs there will be a topic waste management norms and I will discuss thoroughly कि हमारे waste management norms country में इस समय क्या हैं और हमको उनको आगे कैसे टैकल करना है. समझ गए आप? ठीक है,
तो लास्टली इस आर्टिकल में शशि थरूर ने क्या कहा कि पोल्यूशन जो है वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो है ही, और वो एक बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। हमको अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना है। ट्रस्ट मी, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर मेंस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर मेंस ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे कि पोल्यूशन इज नॉट merely a environmental issue, not merely a environmental issue, it is also a behavioral one। ठीक है, अगर एक पड़ोस में 10 लोग हैं तो 10 की 10 गाड़ियों से क्यों जाते हैं? क्या आपस में कॉपरेशन नहीं कर सकते कि 10 में से 2 गाड़ियां जाए और 5-5 लोग दोनों गाड़ियों में जाए? कितना कम एमिशन हो जाएगा। ओके, जब आप रेड लाइट पे खड़े हैं, अगर 2 या 3 मिनट की रेड लाइट है तो गाड़ी ऑन रखना क्यों है? उस वक्त आप गाड़ी बंद नहीं कर सकते। बिहेवियरल चेंजेस, सॉलिड वेस्ट को ओपन डिस्पोजल क्यों करना है? ठीक है, यमुना के अंदर ही क्यों बहाना है? समझ रहे हो मेरी बात को? दिवाली के ऊपर एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स क्यों नहीं जला सकते? हम क्यों पुअर क्वालिटी के क्रैकर्स ही जलाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात को? इट इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम नाउ। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी अवेयरनेस करना पड़ेगा, कैंपेन्स करने पड़ेंगे, स्कूल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, सोशल इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, कलेक्टिव चॉइसेस और प्रायोरिटीज को फिक्स करना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, पुराने जमाने में जब हवा साफ होती थी तो शायर कहते थे कि नहीं मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, मुझे लाइट नहीं चाहिए, नहीं मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा तो लगे। अब हम सुबह की हवा भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दिस हैज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम, और दिल्ली वालों के लिए ये शेयर जो है वो इनवैलिड हो चुका। समझ रहे हो मेरी बात को? सो बिहेवियरल चेंज ऑल्सो कैन गो अ लॉन्ग वे, एंड ऑल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पोल्यूशन मैनेजमेंट। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने से, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने से बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल फॉर यू व्हाट आई हैव ब्रॉट टुडे। Tomorrow I will take up one more important topic, that is global precision medicine market. Okay, I will first of all take what is precision medicine tomorrow. Precision medicine. Okay, so precision medicine I will take up tomorrow, and tomorrow I'll come up with more The Hindu articles. Okay, so I hope मैं bilingual होके थोड़ा सबको ज़्यादा benefit पहुंचा पा रहा हूँ. Okay, so thank you so much for joining me. I will come up tomorrow again with the news analysis of tomorrow, 18th of November. Thank you so much.